Are you worried about CCF counseling? If yes, then this video is the ultimate solution of your problem. So what's up guys, this is Jiturayat and welcome to my new video. By the way, I am a second year student at Triple IT Kota. So guys, anyone from you ask me the doubts related to CCF counseling? So I thought yaar, I need to make a video on this topic. If you are interested in this video and you have doubts, then ask in comments. So guys, let's get started. So our today's video is on the CCF counseling procedure, like when counseling start, who can apply, and how much the fees, and which colleges participate in this counseling. So guys, we are discussing this process in some points. So our first point is, what is CSAB? CSAB stands for Central Seat Allocation Board. It comes after the JOSA counseling. मेनली इट्स टारगेट टू फिल द वैकेंट सीट्स। तो गाइज यहाँ पे एक कॉमन डाउट होता है कि मतलब सीसेब एक अलग से कॉलेज एडमिशन सिस्टम है, बट नहीं गाइज, सीसेब इज नॉट ए सेपरेट कॉलेज एडमिशन सिस्टम। बेसिकली इट यूजेस टू फिल द वैकेंट सीट्स आफ्टर जोसा काउंसलिंग। द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स आर द एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज एंड आल्सो जेएफटीआईज। लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाई सीट्स बिकम vacant. It happens due to some common scenarios like student withdraw, students move to IIT, and students move to some private colleges and they do not report, and some students fails document verification. Or second point is, why does CSAV exist? If I talk in simple language, after the last round of JOSA counseling, there are still hundreds or thousands vacant seats. So instead of wasting them, CSAV conducts another counseling process in which you get better branch, better college, another admission chance. So mainly for that CSAV exists. And our third point is, who can participate? Those students who participate in JOSA, they are also eligible for CSAB. I am explaining by some cases. Like imagine case 1, students who already got a seat in JOSA counseling, so they can participate for future upgradation. Case 2, like we have a student who didn't get a seat in JOSA counseling, so this type of students completely eligible. Case 3 is a fresh student who never participate in JOSA counseling, so this student is also eligible, but still depends on that year CSAB conditions. So these are the some cases, but basically most of the students are eligible for CSAB counseling, those who were eligible for JOSA counseling. So our fourth point is registration process, how you will register. So I am explaining this process step by step. So first you register on CCA portal and then you log in, and then you will need to fill choices, and then after the choice filling period you need to log your choices. Like in some cases you didn't log your choices, then they will automatically logged after the given time period, so you don't worry about this log unlock system. And then you need to pay participation fees, and that was I think 5,000 or may different, you can check on the portal, and then you wait for your allotment. So guys, this is the beginner friendly explanation of CCA counseling. And our fifth point is seat allotment. Seat allotment may be depend on your JEE main rank. Remember, in JOSA counseling you got seat based on your category rank, but in CCA counseling you will get seat based on your all India rank. So after seat allotment the process will same, like you have three options: freeze, float and slide. Then you will need to choose a option. If you choose freeze, then you log this seat, like you are happy with this seat and you do not want future upgradation. And if you choose float, this was the safest option, then your current seat is still yours, but by holding this you can get a better seat. And slide mean you want a different branch in this same college. So let's understand by an example. Like you got EC in Triple IT Kota. If you choose freeze, then Triple IT Kota EC is yours, and if you choose float, then Triple IT Kota is still yours. But in future rounds you can get another seat in another college, and ये seat वो होगी जो आपने इसके ऊपर fill की होगी. And like you choose slide, then this mean you want another seat in Triple IT Kota, not any other college. So this was the basic common difference in freeze, float and slide. So after that you will need to pay fees like seat acceptance fees, and then you can easily download your seat acceptance letter. So guys, this process is similar like JOSA counseling. So guys, ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें, like मतलब कैसे आपको काउंसलिंग करनी है सीसे वाली. अगर आप जोसा काउंसलिंग करके आ रहे हो तो आपके लिए मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आप कर लोगे ये वाली भी, क्योंकि प्रोसेस एकदम सिमिलर रहने वाला है. बट आपको यहाँ पे बस एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करनी होगी वो स्टार्टिंग के अंदर, एंड देन आफ्टर दिस यू विल नीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स. तो गाइस, ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें कि आपको मतलब कैसे काउंसलिंग करना है क्या नहीं, पूरा सीन मतलब ये तो आप कर लोगे. सो गाइस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम कॉमन मिस्टेक्स जिनसे आपको बचना है. लाइक अगर मतलब आपने गलती से भी वो कॉमन मिस्टेक कर दी तो भाई आपकी पूरी साल खत्म है. तो देखो गाइस, फर्स्ट थिंग है कि आपको चॉइस फिलिंग एकदम बढ़िया तरीके से करनी है, क्योंकि अगर आपने चॉइस फिलिंग में गड़बड़ कर दिया, अगर लाइक किसी कॉलेज को आपने ऊपर कर दिया जिसको आपको नीचे करना था, तो मतलब ऐसे मिस्टेक्स गलती से हो जाती है. हम करना नहीं चाहते बट फिर भी हो जाती है. तो गाइस, बी अवेयर ऑफ चॉइस फिलिंग, क्योंकि ये आपका लास्ट चांस है कॉलेज मिलने का, नेशनल इंपॉर्टेंस. सो गाइस, अपनी जो दूसरी मिस्टेक है वो है कि इग्नोरिंग लोअर ब्रांचेस, क्योंकि गाइस लोअर ब्रांच को इग्नोर करने से नुकसान आपका ही है, क्योंकि लाइक आपकी एक तो रैंक मतलब थोड़ी हाइयर है
क्योंकि तभी आपको मतलब जोसा में सीट नहीं मिली है। सो यू नो कि सीसेब आपका लास्ट ऑप्शन है। सो मेरा मानना है कि मतलब एक साल खराब करने से अच्छा आप किसी एनआईटी या ट्रिपल आईटी में लोअर ब्रांच ले लोगे तो आपके लिए सही रहेगा। सो गाइस दिस इज माय पर्सनल पीओवी कि मतलब आप लोअर ब्रांच को भी कंसिडर करें सीसेब के अंदर। तो गाइस इससे आपको एक कॉलेज का टैग मिलने वाला है और जिससे आपके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी, तो जो कहीं ना कहीं आपको करियर में हेल्प करेगी। सो गाइस और नेक्स्ट मिस्टेक इज इग्नोरिंग न्यूअर ट्रिपल आईटी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है कि न्यूअर ट्रिपल आईटी को कंसिडर नहीं कर रहे हो, क्योंकि गाइस जिस तरीके से वो ग्रो कर रही है उस हिसाब से आपको उनको भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी। सो गाइस ये तो हो गई कुछ कॉलेज से रिलेटेड मिस्टेक्स है। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं कि कॉलेज के मिलने के बाद कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर ये आपने कर दी तो कॉलेज मिलने के बाद भी आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि दीज कॉलेजेस रूल्स एंड गाइडलाइंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो गाइस फर्स्ट थिंग है कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो फिर आपको रेगुलरली उस कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करना और वहाँ पे देखना है कि रिपोर्टिंग डेट्स अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि सीसीएफ खत्म होने से पहले वो अपडेट कर देते हैं वेबसाइट पे। सो आपको रेगुलरली वहाँ पे चेक करना है फिजिकल रिपोर्टिंग डेट्स, एंड उसके बाद जो भी आपकी फीस की डेडलाइन है उस डेडलाइन से पहले पहले आपको फीस पेमेंट कर देना है। जो भी लाइक हॉस्टल एंड कॉलेज फीस है वो आपको दोनों पे कर देना है। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट अरेंजिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो गाइस रिपोर्टिंग डेट्स के साथ में जो कॉलेज की वेबसाइट होती है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन रहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। लाइक जैसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि वहाँ पे मेंशन नहीं है और आपको लगता है कि वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी अपने साथ कैरी कर लीजिए, क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। एंड गाइस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आवर लास्ट मिस्टेक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वाज लाइक डिपेंडिंग ओनली ऑन यूट्यूब इंस्टेड ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट। तो गाइस ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि आप ओनली यूट्यूब के ऊपर डिपेंड रहते हो। तो आपको मतलब आपको यूट्यूब पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स को भी चेकआउट करते रहना है। सो हाँ गाइस यही कुछ पॉइंट्स थे सीसीएफ के रिलेटेड जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। एंड मैंने इसके साथ जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है उनको भी डिस्कस किया, तो आपको उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि गाइस मुझे पता है कि आप सभी ने इतनी मुश्किल से जेई क्लियर किया है कि मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद आपने जेई क्लियर किया है और उसके बाद भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिले वो भी आपकी कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से, तो मतलब बहुत ही रिग्रेट होता है इस चीज़ के लिए। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया है। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और ये इन्फॉर्मेशन आपके कहीं काम आएगी। एंड गाइज आल्सो मैं यही होप करता हूँ कि आप सभी को एक अच्छी कॉलेज मिले और अच्छी ब्रांच मिले। लाइक आपका एक साल वेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब किसी प्राइवेट कॉलेज में जाने से अच्छा है कि आप एक नेशनल इंपॉर्टेंस की कॉलेज में जाइए, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो यार गाइज मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।